आमतौर पर एक मोटरसाइकिल में अधिकतम 2 लोग बैठ सकते हैं। निरेन के लिए 3 लोगों का बैठना बहुत आम है, लेकिन एक ऐसी बाइक बाजार में आने वाली है जिसमें एक साथ 10 लोग बैठ सकते हैं। दुर्गापुर शहर के गोपाल मार्ट क्षेत्र के युवक छोटन उर्फ मनु ने नई तकनीक का इस्तेमाल कर 10 सवारियों के बैठने के लिए लंबी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक बनाई है और यह मोटरसाइकिल एक बार चार्ज करने पर 100 किलोमीटर तक चलेगी। इसकी कीमत केवल 8 रुपए होगी। इस मोटरसाइकिल को बनाने में छोटन बाबू को केवल 22 दिन लगे और इसकी लागत 15,000 रुपए आई। बाइक न सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज से चलेगी बल्कि सोलर पावर से भी चार्ज होगी। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के विकल्प के तौर पर इन 10 पैसेंजर बाइक्स को बाजार में रिस्पांस मिलने वाला है। गोपाल मैदान के दुबचुरिया गांव निवासी छोटन घोष इस बाइक को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 पर चलाकर पहले ही अपनी पहचान बना चुके हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लोगों की जरूरतों के लिए इस तरीके के मोटरसाइकिल को बनाने में मदद की अपील की है। मनु पेशे से फ्लावर डेकोरेटर का काम करते हैं। मनु ने बताया कि अपने साथियों के साथ लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय उन्हें यह नवीन विचार आया। इस शानदार बाइक को सभी के सहयोग से तैयार किया गया है। बाइक एक छोटे साउंड बॉक्स से भी लैस है जो मोबाइल फोन की ब्लूटूथ से कनेक्टेड होकर संगीत भी बजाता है और साथ इस बाइक को देखने के लिए शहर के लोग गोपाल मार्ट में जमा होते दिखे। এই বাইকটাতে 10 জন আমরা চেপে ঘুরে বেড়াই, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা 10 জন এই বাইকটার উপরে চেপে যেতে পারে। আর এটা আমরা 2 বছর আগে ইঞ্জিন সিস্টেম বাইক এরকম করেছিলাম। তা সেটা আমাদের পুলিশে পারমিশন দেয়নি, রোডে পুলিশ দেখলেই ধরে নিত। তো সেইটা আমরা এবার ব্যাটারি সিস্টেম করেছি। এই ব্যাটারি সিস্টেমে সোলার সিস্টেমে ওইটা চার্জ হবে, ফ্রি অফ কস্ট চার্জ হবে, আবার কারেন্টেও চার্জ হবে। কত কিলোমিটার চলছে একবার ব্যাটারি চার্জ? একবার ব্যাটারি চার্জ করলে 100 কিলোমিটার। কতদিন সময় লেগেছে বাইকটা বানাতে? বাইকটা বানাতে সময় লেগেছে আপনার 1 মাস। যে পুরনো গাড়ির চাকাগুলো সব পুরনো আছে, আর এরকম লোহার পাইপ দিয়ে গাড়িটা পুরো তৈরি। যত পুরনো পুরনো গাড়ির ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আর লোহার পাইপ দিয়ে এই গাড়িটা পুরোটাই তৈরি। এখন কি পুলিশি কোনো ব্যাটারি দিয়ে ছোট হাতির যে ব্যাটারি, সেই ব্যাটারি পুরনো ব্যাটারি লাগানো হয়েছে, পুরনো মোটর দিয়ে আছে, কন্ট্রোলার দেওয়া আছে। এই আইডিয়াটা এলো কোথা থেকে তোমার? আইডিয়া নিজে থেকে। আমি এইসবই ছোটো থেকে এইসবই মেকানিক্যালের কাজ করি। আমাদের ডিবিসি মোড়ে যে বুর্জ খলিফা হয়েছিল, সেই বুর্জ খলিফাটা আমিই করেছিলাম কালী পুজোয়। আবার বড়জোড়াতেও যে জগদ্ধাত্রী পুজোয় বুর্জ খলিফা হয়েছিল, সেই বুর্জ খলিফাটা আমি করেছিলাম। সরস্বতী পুজোয় আমাদের কুড়িলিকা সিনেমা হলের গাড়ির মধ্যে লাইট আছে, ফোকাস লাইট আছে, ব্যাক লাইট আছে, মিউজিক সিস্টেম আছে, ভিডিও সিস্টেম আছে। তো রাস্তা যেহেতু এটা ব্যাটারি সিস্টেম গাড়ি, সেই জন্য আর কিছু বলার নেই। এত বড় একটা সাইজ, সেটা সাধারণত টার্নিং নিতে বা হাইওয়েতে উঠতে কতটা তোমাকে টাফ মনে হয়, চ্যালেঞ্জিং কতটা? সেরকম তো কিছু নেই, এরকম আসানি আছে, এরকম গলি সব আসানিতেই ব্যাক হয়ে যায়। কতজন চাপতে পারছেন গাড়িটাতে? গাড়িটাতে 10 জন। আপনার নাম? আমার নাম মনু ঘোষ। এরকম ভালো নাম ছোটন ঘোষ। আরেকবার বলুন নামটা। মনু ঘোষ। লাগে আমরা ওই গাড়িটা নিয়ে ঘুরি, অনেক কিছু করি, কোথায় ঘুরতে যাই, গাড়িটা দেখতেও ভালো লাগে আমাদের। একসাথে বন্ধুরা সবাই ঘুরো? হ্যাঁ, একসাথে বন্ধুরা সবাই ঘুরি। রাস্তায় দেখলে জিজ্ঞেস করে না লোকে? হ্যাঁ, জিজ্ঞাসা করে। কি লোক জিজ্ঞাসা করে এই গাড়িটা কোথায় বানালি, কি করে বানালি, আমাদেরকেও বানিয়ে দিবি একটা গাড়ি। ঠিক আছে, লোকে অনেক কিছু বলে, লোকে দাঁড় করে অনেক কিছু বলে, দাঁড়াতে দাঁড়াতে অনেক লোক ভিড় করে যায়। কি নাম? পাবন জীবন। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। करीब 4 महीने पहले मुंबई से अगवा की गई 2 साल की बच्ची को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास से छुड़ा लिया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिलीगुड़ी के पास बन्नी बाजार में रहने वाले आसिफ अली शेख ने 19 सितंबर को बांद्रा रेलवे स्टेशन से लड़की को कथित तौर पर अपहरण कर लिया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वह लड़की को अपने किराए के मकान में लेकर आया था और उससे भीख मंगवाने की योजना बना रहा था। अपहरण के बाद लड़की के परिजनों ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया और पता चला कि लड़की को शेख द्वारा सिलीगुड़ी ले जाया गया था, जो नाबालिगों का अपहरण कर उनसे भीख मंगवाने का काम किया करता था। एक सूत्र से मिली जानकारी ने कहा कि ऐसी खबरें हैं कि वह बच्चों को मोटी रकम में बेच भी देता था। इसी बीच बांद्रा पुलिस ने न्यू जलपाईगुड़ी में अपने समकक्षों के साथ मामला उठाया।
कुछ दिन पहले बांद्रा पुलिस की एक टीम यहां पहुंची और एनजीपी पुलिस के साथ संयुक्त जांच शुरू की। उन्होंने अंततः शेख के आवास पर भी ध्यान दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार से आरोपी व्यक्ति लड़की को अपने परिवार के पास रखने के लिए अलीपुर द्वार ले गया, जिसके तहत उसे पकड़ लिया गया और लड़की को भी वहां से बचा लिया गया। महाराष्ट्र से आई पुलिस की टीम ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी की और लड़की को लेकर वापस लौट आई। जल्द ही उसे उसके परिवार को भी सौंप दिया जाएगा। साथ ही पुलिस ने शेख से पूछताछ भी शुरू कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर एमवी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने उद्घाटन के बाद कहा, गंगा विलास का उद्घाटन पूर्वी भारत के लिए पर्यटन के विश्व मानचित्र पर और अधिक उज्जवल उभरने के लिए नए रास्ते को खोलेगा। भारत को शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसे केवल दिल से अनुभव किया जा सकता है। पीएम ने एमवी गंगा विलास नदी क्रूज पर विदेशी पर्यटकों से कहा कि एमवी गंगा विलास भारत में बनने वाला पहला क्रूज पोत है। यह रिवर क्रूज सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनेगा। पीएम ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बने टेट सिटी का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने इस अवसर पर बिहार, पश्चिम बंगाल, असम में अंतर्देशीय जलमार्ग की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। फ्लैग ऑफ समारोह बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य मंत्रियों और विभिन्न मंत्रालयों के विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। मुंबई की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रगान के कथित अपमान से संबंधित एक मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन गुरुवार को रद्द कर दिया। यह देखते हुए कि मजिस्ट्रेट ने अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया है, विशेष न्यायाधीश RNK रोडके ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद समन को रद्द कर दिया और मजिस्ट्रेट के सत्यापन के चरण से मामले को आगे बढ़ाने के लिए कहा। विशेष न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट को बनर्जी के खिलाफ प्रक्रिया जारी करने पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के एक पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने एक शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें दावा किया था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दिसंबर 2021 में मुंबई की अपनी यात्रा के दौरान एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजने के दौरान खड़ी नहीं हुई थी। गुप्ता ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम के तहत बनर्जी के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। गुप्ता की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट अदालत ने बनर्जी को समन जारी किया था, जिन्होंने इसके खिलाफ विशेष अदालत के समक्ष एक समीक्षा याचिका दायर की थी। बनर्जी के वकील ने पहले अदालत से कहा था कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अनिवार्य कोई मंजूरी नहीं ली गई थी। हालांकि अतिरिक्त लोक अभियोग सुमेश पंजवानी ने तर्क दिया था कि बनर्जी की यात्रा राजनीतिक थी और आधारिक नहीं थी और इसीलिए किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने बनर्जी की याचिका स्वीकार कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। जामुड़िया के नंदी रोड स्थित MB लायंस अस्पताल के प्रांगण में आज प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 23वां मेगा निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह नेत्र जांच रानीगंज लायंस क्लब के डॉक्टरों द्वारा किया गया। इस नेत्र जांच शिविर का लाभ तकरीबन 500 से ज्यादा लोगों ने उठाया। इस शिविर के दौरान लायंस क्लब के चेयरमैन पवन अग्रवाल ने बताया कि जामुड़िया लायंस क्लब का यह 23वां निशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर है। प्रत्येक वर्ष इस क्लब के द्वारा पूरे विश्व में निशुल्क नेत्र चिकित्सा कराई जाती है, जिसके तहत आज हम लोगों ने जामुड़िया में इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां आसपास के कई गांव के जरूरतमंद लोगों ने अपने नेत्र की जांच कराई। साथ ही जिस भी व्यक्ति की आंखों को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी, उन लोगों को हम रानीगंज के लायंस MGM अस्पताल में अपनी एम्बुलेंस के द्वारा ले जाएंगे और उनका ऑपरेशन भी कराएंगे। साथ ही जिन्हें चश्मे की जरूरत है, उन्हें चश्मा भी प्रदान किया जाएगा। मौके पर MIC सुब्रतो अधिकारी, थाना अधिकारी राहुल देव मंडल, मृदुन चक्रवर्ती, सुचित्रो बैनर्जी, संदीप खेतान, मनोज अधिकारी, श्रवण पटवारी, भूषण गुप्ता, प्रवीण मंसल, चिन्मय माझे, विनोद मिश्रा, पुरुषोत्तम नाड़, प्रदीप पटवारी, SK जैन, मेघना अधिकारी, राजेश शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। 23वां वर्ष है लायंस क्लब ऑफ इंटरनेशनल हम लोग का पूरा वर्ल्ड में ये हम लोग
आँख ऑपरेशन, आँख चेकअप कैंप पूरा विश्व में हम लोग का चलता है। इसमें आज हम लोग का भी हो रहा है। आशा करते हैं मोटा मोटी 500 लगभग पेशेंट होना चाहिए। उसमें जो आदमी आँख के लायक बने उनको हम लोग रानीगंज हॉस्पिटल भेजेंगे। यहाँ से हम लोग की गाड़ी लायंस क्लब की लेके जाएगी तो यहाँ पर वो वापस पहुँचाएगी। जिनको चश्मा की जरूरत होगी 26 जनवरी को हम लोग सबको चश्मा इशू करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। डॉक्टर की टीम हम लोग रानीगंज हॉस्पिटल की। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। दीदी की सुरक्षा कवच कार्यक्रम को सामने रखते हुए दूतों को इलाके में जाते ही विरोध का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से पीएम आवास योजना एवं पेयजल समस्याओं को लेकर। वही आवास योजना को लेकर केंद्र सरकार पर दोष चढ़ाकर लोगों को सांत्वना दी गई। शुक्रवार की सुबह प्रदेश सचिव एवं बंगला जगत के सीने अभिनेत्री सायंतिका बंदोपाध्याय की जुबिंदिया ग्राम पंचायत में जाते ही लोगों को विरोध का सामना करना पड़ा। साथ में तालडंगरा विधायक एवं तृणमूल वरिष्ठ नेता अरूप चक्रवर्ती, बांकुड़ा नगर पालिका के चेयरमैन अलकार सिंह मजूमदार, तृणमूल छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष तीर्थकर कुंडू समेत स्थानीय तृणमूल नेतागण उपस्थित थे। এক বছর হয়ে গেল কলে জল পড়ে নাই। তাতে সায়ন্তিকাকে পেয়ে কি বললেন? এগুতে পড়তো দিয়ে ওখানে আর পড়ছে না। সায়ন্তিকাকে কি বললেন? শান্তিকা বললাম যে আমাদের কলে জল পড়ে না। কতদিন ধরে পড়েনি? এক বছর হয়ে গেল পড়ে না। তো কল দেওয়া হয়েছে? কল দেওয়া হয়েছে, জল পাচ্ছে না। কি জল খাচ্ছেন? আমরা ওই যে লোকের বাড়িতে মাঠে আনতে যাই জল, কলে খাই। টিউবওয়েল নেই? হ্যাঁ টিউবওয়েল। কি নাম আপনার? বকুল বাগতি। বাগদিপাড়ে গিয়ে শোনা গেল যে কল আছে জল নেই, জল আসছে না গত এক বছর ধরে, কি বলবেন? দেখা হচ্ছে ওটা কলে জলটা পড়ছিল কিন্তু সরু হয়ে পড়ছিল কোনো কারণে। এই লাইনটা একটু উঁচুতে, তাই পাইপলাইনের একটু সমস্যা, টেকনিক্যাল একটু ইস্যু আছে, যেটা মেনটেনেন্সের জন্য শাটডাউন হয়ে রয়েছে টাউন এরিয়াতে। দুদিনের জন্য 2-3 দিনের শাটডাউন নিয়েছে, সেই জন্য। কিন্তু ওরা বলছে যে এক বছর ধরে জল আসছে। সেই জন্যই আমরা সেই জন্যই কি জন্যে কাজটা এগোইনি। এই ল্যান্ডটা বাগদিপাড়াটা যেখানটাতে আছে, এই ল্যান্ডটা একটু ওপরের দিকে, যে কারণের জন্যে যেখান থেকে লেভেলিংটা করা সেখানে জলটা নিতে পারছে না। তো এটা ফ্লোটা কমে যাচ্ছে, ইভেনচুয়ালি ফ্লোটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সেই জন্যই সেটা আমাদের টেকনিক্যাল যারা এক্সপার্টরা রয়েছে, আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা, তাদের সাথে আমরা কথা বলবো এবং কীভাবে পার্মানেন্ট সলিউশন করা যায় সেটাই হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। जामुड़िया के बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 6 मंडलपुर ग्राम स्थित तृणमूल महिला ब्लॉक की ओर से 300 जरूरतमंद लोगों में आज कंबल वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विधायक हरिराम सिंह ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इस कड़क ठंड से बचने के लिए कंबल वितरण किया गया, जिसका श्रेय आज ये राखी कर्मकार को जाता है। अपने परिवार के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जो करता है वो बहुत बड़ा दान होता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने तृणमूल सैनिकों को यही सिखाती है कि दूसरों के लिए कार्य करें। वहीं इस दौरान उन्होंने और भी कई बातें कही। फ्री राशन पाচ্ছি না, নানা অভিযোগ আমাদের উপরে লাগে, लेकिन আপনাদেরকে বুঝতে হবে যে দিদি দিয়েছেন, এখন রাকেট বলছিলেন 72টি প্রকল্প চলছে, আমরা 15টি এখন হাতে নিয়েছি। বাড়ি বাড়ি যেয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করব, আর যে পায় নাই তাকে পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করব। দেখুন, দরকার পড়ে আপনারা নিজের স্বামীর কাছে বলতেন কি 10 টাকা দাও, ছেলে বলছে চকলেট খেতে, স্বামী বলতো না আমার কাছে টাকা নাই, না বাহানা করে। এখন উল্টা দিদি উল্টা করে দিয়েছে। এখন তোমাদের কাছে স্বামী বলছে যে আজকে ঘরে সবজি নাই, 100 টাকা দিবে, ঘরে আমি দেখবো তোমার পয়সা রিটার্ন করে দিব, তোমরা দিচ্ছ। কত পরিবর্তন হচ্ছে। वहीं मौके पर MIC साहब ब्लॉक 1 के अध्यक्ष सुब्रत अधिकारी, गुरुदास चैटर्जी, राखी कर्मकार तरुण दास, राजीव राय, अब्दुल हाउस आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अंडाल थाना अंतर्गत एयरपोर्ट इलाके स्थित नारायणा स्कूल के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी पर छात्रावास में रहने वाले 12वीं की छात्रा के साथ गलत आचरण करने के आरोप में हॉस्टल के छात्रों ने जमकर धुनाई कर दी। शिक्षण संस्था के अधिकारी की पिटाई किए जाने की वीडियो वायरल होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना मिलते ही अंडाल थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं छात्रों के चंगुल से शिक्षक अधिकारी को मुक्त कराया। इस दौरान पुलिस एवं छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई। सूत्र के मुताबिक स्कूल के AGS अनिल कुमार पिछले कई दिनों से स्कूल के हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा को गलत आचरण कर रहे थे, जिससे छात्रा काफी परेशान रहती थी। गुरुवार फिर अनिल कुमार ने छात्रा के साथ कुप्रस्ताव देने का प्रयास किया, जिससे छात्रा हॉस्टल के रूम में चीखने चिल्लाने लगी। छात्रा के शोर मचाने से हॉस्टल के दूसरे छात्रों की नजर पड़ी। सभी छात्र दौड़े आए। इस दौरान छात्रा ने AGS द्वारा किए जा रहे आचरण के बारे में छात्रों को बताया, जिसे सुनकर छात्रा आक्रोशित हो गए एवं अरुण कुमार को खदेड़ते हुए पकड़ा, जमकर पिटाई करने लगे। इस बारे में पुलिस ने बताया कि स्कूल की घटना को लेकर अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पश्चिम बंगाल लॉ क्लर्क एसोसिएशन की तरफ से राज्यव्यापी आंदोलन के तहत पेन डाउन कार्यक्रम किया गया, जिनकी मांग लॉ क्लर्क एक्ट के अनुसार राइट टू एक्ट चालू करने, भूमि संस्कार एवं परिवहन विभाग में लॉ क्लर्क के बैठाने की व्यवस्था करने, लॉ क्लर्क वेलफेयर फंड चालू करना इत्यादि अन्य मांगों को लेकर आंदोलन चलाया गया। एसोसिएशन की चेतावनी है कि हमारी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो बड़े आंदोलन पर उतरेंगे। আমাদের সারা পশ্চিমবাংলায় যত ল ক্লার্ক ভাই বন্ধুরা আছে তাদের সকলের প্রথম যেটা দাবি, ল ক্লার্ক অ্যাক্ট আজ বহুদিন আগে পাস হয়েছে, সেটা কিন্তু সরকারিভাবে লাগু করার যেটা দৃষ্টিভঙ্গি বা মানসিকতা, সেটা কিন্তু সরকার বাহাদুর বা বিচার বিভাগ এরা কিন্তু এটা লয়েন নাই বা মনে করেন নাই। আমরা সে ব্যাপারে যথাযথভাবে প্রেজুডিস হচ্ছি। আমাদেরকে অবাঞ্ছিতভাবে অনেকে মনে করে যে ল ক্লার্করা আদালত প্রাঙ্গণে একটা অবাঞ্ছিত ব্যক্তি, কিন্তু আমরা আদালতের দক্ষিণস্থ। এই ল ক্লার্ক ভাই বন্ধুরা আদালতের দক্ষিণস্থ। আমাদের যেমন দাবি, ল ক্লার্ক ভাই বন্ধুদের সরকারিভাবে ওয়েলফেয়ার ফান্ড চালু করতে হবে। এটা হলে আমরা সকলেই কিছু সরকারের কাছ থেকে উপকৃত হব। আদালত প্রাঙ্গণে ল ক্লার্ক ভাই বন্ধুদের বসার জায়গা সরকারিভাবে অবিলম্বে করতে হবে। লিটিগেন্ট পাবলিক আদালতে যারা আসেন তাদের বসার জায়গা, শৌচাগার, প্রস্রাবাগার এটা সরকারিভাবে করতে হবে। আজকের আমাদের এই আন্দোলনটা সারা পশ্চিমবাংলাব্যাপী চলছে, শুধু বাঁকুড়া নয়। এই দাবি দিয়ে যদি সরকার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষিত না হয়, তাহলে আগামী দিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনের পথে যেতে এবং নামতে বাধ্য হব। এ বিষয়ে আমি সকল উপস্থিত সাথী ল ক্লার্ক ভাই বন্ধুদের বলবো, আমাদের এই আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং প্রসারিত করার জন্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম শিবেশ চট্টরাজ। এই প্রফেশনের সাথে আমি আজ দীর্ঘ প্রায় 45 বছরের ঊর্ধ্বকাল যুক্ত। আমি বাঁকুড়ার একজন সাধারণ ল ক্লার্ক ভাই বোন। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 2রা জানুয়ারি নজরুল মঞ্চে তিনি ঘোষণা করেছিলেন একটি নতুন প্রকল্প, যার নাম দিয়েছিলেন দিদির সুরক্ষা কবচ। এই সুরক্ষা কবচের মধ্যে 6টি ক্ষেত্র এবং 15টি প্রকল্প আছে। সেই 15টি প্রকল্পের মধ্যে এরকম আছে সামাজিক সুরক্ষা, তার মধ্যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার আছে, যেখানে সাধারণ ঘরের জন্য প্রত্যেক মাসে 500 টাকা এবং তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের জন্য 1000 টাকা প্রদান করা হয়। এবং কৃষক বন্ধু আছে, আপনারা জানেন যে 1 একর চাষযোগ্য জমি থাকলে তাদেরকে বছরে 10,000 টাকা দেওয়া হয়।
যদি 1 একরের কম হয় তাহলে প্রতি বছরে তাদেরকে বার্ষিক 4,000 টাকা প্রদান করা হয়। সামাজিক সুরক্ষার যোজনা, যেটা আপনার অসংগঠিত শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সেগুলো সক্ষম ব্যক্তিদের প্রতি মাসে 1,000 টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। জয় বাংলা এবং জয় জোহার আছে, তফসিলি বন্ধু আছে, তাদের প্রত্যেককে প্রতি মাসে 1,000 টাকা করে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। বিশেষত তফসিলি জাতি এবং উপজাতিদের অন্তর্গত প্রবীণ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। এখানে স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড, যেখানে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকার ন্যূনতম একটা সুদের মধ্য দিয়ে তারা যাতে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে তার ব্যবস্থাও রাজ্য সরকার এবং আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুনিশ্চিত করেছেন। কন্যাশ্রী প্রকল্প, আপনারা প্রত্যেকেই জানেন যে কন্যাশ্রী প্রকল্প ভারতবর্ষ শুধু নয়, বিদেশের মাটিতে সুনামির। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। बंगाल आज जो सोचता है देश बाद में सोचता है। ममता बनर्जी देश की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है। पांडेवेश्वर में दीदी के दूध कार्यक्रम में राजदूत के रूप में आने पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ममता बनर्जी की इस तरह से प्रशंसा की। स्थानीय लोगों की कमी की शिकायत भी सुनी। पांडेवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बनियाडीही में एक दीदी दूध कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंचायत चुनाव से पहले जनसंपर्क को बढ़ाने के लिए तृणमूल कांग्रेस द्वारा दीदी के संरक्षण आकर्षण नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। पूरे प्रदेश की तरह शुक्रवार को पांडेवेश्वर विधानसभा में भी कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दिन कार्यक्रम की शुरुआत पांडेवेश्वर प्रखंड के बहुला पंचायत क्षेत्र में हुआ। इस दौरान आसनसोल तृणमूल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती और अन्य राजदूत के रूप में उपस्थित रहे। शत्रुघ्न सिन्हा और नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती चयनित दूतों के साथ उस दिन लगभग 3 बजे बहुला पंचायत के जामबाद दुर्गा मंदिर क्षेत्र में पहुंचे। और सबसे ज्यादा हमारे अपने माँ माटी मानुष के परिवार के आप तमाम भाई बहनों और भाइयों, मेरा अपना परिवार, जिसको देखते ही मैंने कहा बहुत जान है इस परिवार में, बहुत जान है। और मैं आप तमाम लोगों का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथ ही साथ इस सुरक्षा कवच प्रदान करने की, बंगाली में कहेंगे सुरक्षा कवच, ये प्रदान करने की आज की इस घड़ी में मैं सबसे ज्यादा सराहना करता हूं, प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं, गुणगान गाता हूं, बहुत ही मानता हूं भारत की सर्वमान्य नेता या नेत्री, जन नेत्री, लोक नेत्री, ऐसी नेता या नेत्री आज भारतवर्ष में दूसरा कोई भी नहीं है। एकदम मासेस की लीडर, घर घर तक जो पहुंची हुई हैं, एक एक घर के एक एक परिवार के सदस्य, इतनी बढ़िया हमारी अपनी ममता बनर्जी, जो बंगाल की सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं है बल्कि सही मायनों में रॉयल बंगाल टाइगरेस है वो हमारी ममता बनर्जी। जे शत्रुघ्न सिन्हा जी एमपी होने पर बाद भी सोना सोचने का ही है। कहा शत्रुघ्न सिन्हा जी है, बॉम्बे का रहने वाले, फिल्म इंडस्ट्री का सितारा, वो उन्होंने आज जामबाद कोलियारी में, इस सोचने का बात है। बीजेपी को हम दोष देता नहीं, वो लोग का बेचारी हिंदी पेंदी जो है ना, इधर एमपी उमपी ये लोग बढ़ाता नहीं है, तो लोग सोचा एमपी साहब थोड़ा ही आएगा। मगर हर महीना में अपना दिल्ली का एमपी का कार्यक्रम करने का बाद अपना लोकसभा का, संसद का अपना कर्तव्य मिटाने का बाद पांडेवेश्वर, बाराबनी, जामुड़िया, रानीगंज, आसनसोल, कुल्टी, सभी का जनता का लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी हमारे पास हाजिर होते हैं। वे दशरथ नामक निवासी के घर गए, साथ ही तख्ती पर बैठकर घर के सदस्यों से बात भी किया। इस दौरान उपस्थित रहे विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, मदन बावरी, रूमा रुईदास, रामचरित्र पासवान, वीर बहादुर पासवान,
बहुला अंचल सभापति उत्तम मेधा, संदीप सरकार, कृति मुखर्जी, प्रदीप पौदार आदि मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा मिलके उनसे। और हम लोग को आए दीदी दूध के ऐप के बारे में बताएं, जितना भी हम लोग का स्कीम है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षाश्री और कन्याश्री प्रकल्प, ये सब बारे में बताएं। सबको सुविधा हम लोग को देने के लिए बात की है और सभी घर में जा जाके सब बताएंगे। क्या नाम है आपका? रामजी प्रसाद। घर किनका है? दशरथ प्रसाद। पांडेवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।